Welcome friends. Today in this lecture, that is the lecture number 15, this is the lecture number 15 and this is your part of, this is second part of lecture 14. This is part 2 of lecture number 14. In this lecture we will mainly focus on or discuss, we will discuss about the pole mapping and then DFT. Okay, and this DFT is the major portion of the major part of the DFC, digital signal processing, DSP subject. Okay, that will be in 6th or 7th. Okay, and the pole mapping, here the question will come for the gate examination also. Okay, for pole mapping. Okay, what is this pole mapping, we will see. In the last lectures, that is the lecture number 14, we discussed about the Z transform, ROC, inverse Z transform. In this we discuss only two method. There is a 4 method, but we discuss only 2 method, because other 2 methods we discuss 3 methods. Okay, 3 methods. The last method, that is the Cauchy residual theorems, we have not discussed. Okay, because that one is the complex. Okay, so if you are interested in that one, then you can refer any standard book. Okay, for that one. Now we also we discuss about the causality and the stability from the ROC, means by analyzing the ROC of a system, we can say whether it is stable or not. And also we have the jury's test, for which from that one we can also predict or tell whether that system is stable or not. Okay. Now in this lecture we will start with the pole mapping. Okay, so the first important point, that is your pole mapping. First topic we will discuss about the pole mapping, or we can say mapping, pole mapping, or we can say mapping between, or this is also we can say it is a mapping between S plane एंड जेड प्लेन. एस प्लेन एंड जेड प्लेन में हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं या फिर मैप कर सकते हैं. एस प्लेन, दिस इज रिलेटेड टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स. ओके, जेड प्लेन इज रिलेटेड टू जेड ट्रांसफॉर्म, जेड टी एंड एल टी. एल टी मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, नाउ means if there is a Laplace transform of a signal, then we need to calculate or find out the Z transform, inverse Z transform, that is xn of a signal or xz of the signal. Then we will find then that we will be called as a mapping. Mapping means Laplace transform to Z transform. Okay, how to solve the questions if the signals or system is given in Laplace transforms, and then we need to find out the h of n or h of z. For that one we will use the concept of the pole mapping. Pole of S plane will be mapped to the Z plane. What is the S plane? Laplace transform. S plane, in S plane there is a real axis, that is a sigma, and imaginary axis, that is the j omega. This is your S plane. And what is Z plane? Z plane we already discussed. It is a simply angular in the form, means this axis will be represent 0 degree, 90 degree and so on. Okay, polar diagram we can connect with the polar diagram. Okay, now how to map from S plane to Z plane? For this one we have the z equal to e to the power st. Okay, this transformation we will use for mapping S means Laplace domain or continuous time domain to discrete domain, where what is t? T is a sampling interval. Okay, t is a sampling interval. Okay, now how this happens, means if you put in Laplace transform e to the power st as a z,
then we will get your Z transforms. Okay. Now, how this concept is used we will see here. Okay. Mapping. Mapping, what is this? Mapping from what happened to this one? Nothing. Okay, but this one is missing. Okay, leave it. Mapping from S plane to Z plane, S plane to Z plane by this is topic. Okay, by Z equal to e to the power st transformation where t is equal to sampling interval. T is your sampling interval. Okay, so this is topic we will discuss here, this topic. Okay, in a layman language. Okay, now the first condition या case is that if S is equal to sigma, if S is equal to minus sigma, S equal to minus sigma plus minus j alpha, let it be. Okay, means that means minus sigma plus minus j alpha means, this means what? It means that left side of S plane. Okay, any doubt in this? Look, this one is your x axis and this as sigma is minus means this will be your minus sigma, and plus minus j alpha maybe here, maybe this point. Okay, so if S equal to minus sigma plus minus j alpha, this is your pole. Okay, then your Z will be equal to e to the power st. We know that this is the transformation. So we will put s value. Okay, मीन्स व्हाट, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका पोल जो है, ये एस क्या है? पोल। अगर आपका पोल जो है यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है पोल, तो इस पोल को हम लोग सिग्मा प्लस जे ओमेगा, एस प्लेन है ये, इसको हम लोग जेड प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? तो डायरेक्टली वी कैन ड्रॉ द जेड प्लेन डायग्राम. Okay, z equal to e to the power st, we will put this one. So after putting, this will be e to the power minus sigma t into e to the power plus minus j alpha into t. Okay, now if you take the mod value of this one, then this will be simply e to the power minus sigma into t, magnitude of this one, because this is your complex exponential, its value will be, mod value will be 1. Okay, so mod z equal to e to the power minus sigma into t. Therefore this is the mod value. What is the angle of mod z? Angle of z will be simply plus minus जो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का जो कोफिशिएंट रहता है उसको बोलते हैं एंगल, that is your plus minus of alpha t. Okay, so it means that if in the S plane your poles lie in the left side of S plane, then we will map that pole in Z plane by Z plane of magnitude of this one, means this will be your circle radius. Okay, and this is your angle. Okay, so now as sigma is greater than, we assume that the sigma is greater than 0, means sigma is positive. What is this? Sigma is positive. Okay, then it means that mod z will be, अगर सिग्मा अगर आपका 0 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? e to the power minus सिग्मा टी. इसका मॉड वैल्यू भी क्या होगा? ऑब्वियस है कि लेस देन 1 होगा, है ना? लेफ्ट लेस देन 1 होगा, दैट इज इनसाइड क्या हो जाएगा? इनसाइड यूनिट
circle, inside unit circle. Okay, and if we assume t is the sampling time, t क्या है, सैम्पलिंग इंटरवल बोला है ना, t अगर सैम्पलिंग इंटरवल है जो कि 0 से ज़्यादा है, तब फिर क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ जेड विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू टी। मीन्स सिंपली व्हाट वी कैन से हियर दैट अगर आपका लेफ्ट साइड में कोई सिग्नल है, क्या है, अगर आपका लेफ्ट साइड में अगर पोल्स है जो कि इस साइड यहाँ और यहाँ, उसको हम लोग कहाँ भेज सकते हैं, इनसाइड द यूनिट सर्कल। इनसाइड द यूनिट सर्कल मीन्स मॉड जेड हो गया ये आपका, ये हो गया रेडियस विथ 1, ये कितना रेडियस हो गया 1, और ये मॉड जेड इट इज़ योर मॉड जेड इक्वल टू 1। सो दिस इज़ योर रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो हमारा क्या होगा, हमारा हो गया आपको क्या हो गया, हमारा जितना भी पोल्स होंगे जो इस साइड है वो कहाँ होंगे, इसके अंदर में आ जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर होंगे, ठीक है। और एंगल कितना है, मॉड जेड इक्वल टू अल्फा टी, मॉड जेड इक्वल टू क्या है, एंगल जेड इक्वल टू अल्फा टी पे लाई करेंगे, ठीक है। एंगल कितना है, अल्फा इंटू टी, जहाँ पर भी एंगल हो, मान लीजिए यहाँ पर है तो इसी लाइन पे ये लाई करेंगे, ठीक है, ये एंगल अल्फा टी होगा, ठीक है। सो तो इस तरह से हम लोग ये मैपिंग करेंगे, ठीक है। मीन्स अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको इनसाइड द सर्कल करेंगे, ऑब्वियस है ना। लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन है तो ये भी कर सकते हैं, ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल हो गया, करेक्ट, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। अगर पोल्स अगर लेफ्ट साइडेड ऑफ एस प्लेन है तो उसको कहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, इनसाइड द सर्कल जेड ट्रांसफॉर्म में। मीन्स अगर इस तरह का पोल्स है आपका जो कि लेफ्ट साइड में एस प्लेन के, तो उसको कहाँ, इनसाइड सर्कल हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट। केस 1 हुआ, ठीक है। अब केस 2 में देखते हैं क्या, केस 2 में क्या होगा आपका, अगर मान लीजिए एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे अल्फा है, वेयर क्या, इसका क्या मतलब हुआ, सिग्मा प्लस जे अल्फा है, सिग्मा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये राइट साइड ऑफ एस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट साइड ऑफ एस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स इसका अगर डायग्राम बनाए तो ये एस प्लेन है सिग्मा प्लस जे ओमेगा का, तो तुम्हारा पोल कहाँ होगा, ये मान लीजिए सिग्मा है तो एक यहाँ पर होगा, ये मान लीजिए जे अल्फा, प्लस माइनस है ना, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, मीन्स 2 होंगे, एक यहाँ पर पोल और एक जस्ट इसके अपोजिट में, तो एक पोल इधर है एक पोल इधर है, दोनों पोल हो गए, ठीक है। तो यदि ये राइट साइडेड में है तो इसको जेड प्लेन में कहाँ होगा, जैसे ये इनसाइड हुआ तो वो ऑब्वियसली मॉड जेड ग्रेटर देन 1 होगा, आउटसाइड सर्कल होगा। कैसे होगा देखते हैं, तो इसको सिंपली पुट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर सिग्मा टी इंटू ई टू दी पावर प्लस माइनस जे अल्फा इंटू टी, सिंपल है ना, जेड इक्वल टू ई टू दी पावर एस टी पुट करेंगे, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, मॉड जेड का वैल्यू कितना आएगा बताइए, तो ई टू दी पावर सिग्मा टी तो होगा ही इंटू मॉड जेड हो गया ये सिंपली, है ना, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, ई टू दी पावर जे थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा प्लस जेड साइन थीटा, तो उसका मोड क्या होता है, कॉस और साइन का मोड कीजिएगा तो 1 होता है ना। तो मॉड जेड इक्वल टू इतना हो गया। अब इसका एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ जेड, एंगल ऑफ जेड क्या होगा, यहाँ से क्या बोले थे, जो एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट होता है प्लस माइनस अल्फा टी, एज सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स दैट मॉड जेड विल बी ग्रेटर देन योर 1, करेक्ट। ई टू दी पावर 0 1 से ऑब्वियस है कि ज़्यादा होगा, करेक्ट। मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1 मीन्स इट विल बी योर आउटसाइड यूनिट सर्कल, तो यूनिट सर्कल के ये बाहर रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आउटसाइड क्या हो जाएगा, अगर ये सर्कल है ना, जिसका रेडियस 1 है ना, ये जेड प्लेन हो गया, ठीक है। तो इसके बाहर में जो होगा, इसके बाहर में आपका ये जो एस प्लेन का है वो पोल लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे इसका, ठीक है। थर्ड केस देखेंगे, थर्ड केस क्या होगा, केस थर्ड में क्या, अगर मान लीजिए एस इक्वल टू 0 प्लस माइनस जी अल्फा, मीन्स ओनली इमेजनरी एक्सिस पे आपका है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी
इमेजनरी रूट्स, प्योरली क्या हो गया, इमेजनरी रूट्स और सेंटर, और कहाँ है, सेंटर में या फिर सेंटर में हो सकता है। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया, ये तो जीरो हो गया, यहाँ पर एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो या तो ये होगा या तो ये होगा या फिर ये सेंटर में हो जाए, ठीक है। तो ये पोल का रिप्रेजेंटेशन हुआ एस प्लेन में। तो इसका क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर जेड क्या हो जाएगा, इसका जेड लिखेंगे तो क्या होगा, ये ई टू दी पावर एस टी लिखते हैं, है ना। तो ई टू दी पावर एस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस जे अल्फ़ा इंटू टी हो जाएगा, सिंपल। मॉड जेड का वैल्यू क्या होगा, 1 है, और एंगल क्या हो जाएगा जेड का, दैट विल बी योर प्लस माइनस अल्फ़ा टी, सिंपल। अब देखिए मॉड जेड इक्वल टू 1 हो गया, देयरफॉर व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर दैट इज लाई ऑन यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल पे आपका क्या होगा, पोल जो है लाई करेगा, मीन्स जो भी ये है वो आपका ये जेड प्लेन का, ये जेड प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, जेड प्लेन। तो जेड प्लेन का जो यूनिट सर्कल है दैट इज ये वाला, इसी पे कहीं पर लाई करेंगे, ठीक है, जो सेंटर में हो या फिर ये क्या नाम है इसका, इमेजनरी एक्सिस पे, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग मैपिंग करते हैं, किसका मैपिंग करते हैं, ये एस से जेड में। एक्चुअली जेड एस ट्रांसफॉर्म क्या है, एस ट्रांसफॉर्म मतलब हो गया क्या, वो कंटिन्यूस टाइम डोमेन, कंटिन्यूस टाइम डोमेन को अगर सैम्पलिंग करेंगे तो क्या होगा, डिस्क्रीट में फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मैपिंग कर सकते हैं बाय पुटिंग द जेड इक्वल टू ई टू दी पावर एस टी, ठीक है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं ना। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से आपका एस प्लेन दिया गया है, एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, है ना। यहाँ पर मैपिंग है कुछ इस तरह से, देखते हैं हम। सेंटर में एक मैपिंग है, क्रॉस है, मीन्स ये पोल को रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस। और यहाँ पर मान लीजिए एक यहाँ पर क्या है, ये गोला है, मीन्स ये हो जाएगा आपको जीरो बोलेंगे, इसको जीरो की तरह है इसलिए जीरो बोलेंगे, ठीक है। और एक जीरो जो है यहाँ पर है, मीन्स ये इसका मैपिंग होगा जीरो जे पाई बाय 2 हो गया। और एक जो है यहाँ पर हम लोग माप कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, ये हो गया आपको जे पाई और ये जे पाई बाय 2 और ये माइनस जे पाई, समझ में आया। इस तरह से मार्किंग करते हैं सिंपली। लेकिन पोल कितना हो गया, दो जीरो कितना हो गया, 2 जीरो है, जो कि एक जे पाई बाय 2 पे है और एक माइनस जे पाई बाय 2 पे है। अब आपको पोल भी दिया गया है, पोल एक यहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स पोल हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पोल। ये हो गया आपको -2, यहाँ पर भी एक जीरो है, -2 पे भी एक जीरो है। और कितना पोल हो गया यहाँ पर, 3 पोल, एक पोल, 2 पोल एंड 3 पोल। 3 पोल हो गए, जीरो कितना, एक जीरो, 2 जीरो एंड 3 जीरो भी है और 3 पोल, समझ में आया। इस तरह से ये रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये क्या हो गया एस, ये हो गया एस प्लेन का डायग्राम दिया हुआ है आपको, है ना। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, ये डायग्राम जो है किसका है, ये एच ऑफ टी को रिप्रेजेंट करता है, किसका, एच ऑफ टी का जो है, एच ऑफ टी लिखेंगे ना, इम्पल्स रिस्पॉन्स है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसका एच ऑफ टी है, एच ऑफ टी का वो करेंगे तो क्या होगा, ये एच ऑफ एस, एच ऑफ एस को क्या लिखेंगे हम लोग, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, करेक्ट, इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो ऊपर को एन ऑफ एस को इक्वल टू जीरो कर देंगे तो उससे क्या निकल जाएगा, जीरो का वैल्यू, जो भी एस का वैल्यू होगा वो जीरोस कहलाएगा। और डी ऑफ एस इक्वल टू जीरो पुट करके उससे जो एस का वैल्यू निकलेगा वो पोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये एस प्लेन का बात हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या है देखिए, द इम्पल्स रेस्पॉन्स, दैट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम लोग एच ऑफ टी बोलते हैं, इज टाइम डोमेन में देख रहे हैं, इज। अब जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सैम्पल्ड कर रहे हैं, कितना पर, 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, 2 हर्ट्ज पे हम लोग सैंपल करते हैं। कैसे सैंपल करते हैं, याद है ना, कंटिन्यूस टाइम जा रहा है और उसमें स्विच लगा देते हैं, तो ऑन ऑफ होता है, तो उसको बोलते हैं सैंपलिंग करना एक तरह से, है ना। तो फ्रीक्वेंसी, वो जो स्विच है ऑन ऑफ कितना फास्ट हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसीज हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। एक सेकंड में कितना बार वो रिपीट होता है, एक सेकंड में। टू
टू गेट एच ऑफ एन। जो एच ऑफ टी सिग्नल आ रहा है या फिर इम्पल्स रिस्पॉन्स है जो एच ऑफ टी, उसको अगर हम लोग सैंपल कर देंगे तो वो क्या दे देगा हम लोग को, ऑब्वियस है डिस्क्रीट में दे देगा, दैट इज एच ऑफ एन दे देगा, है ना। एच ऑफ एन हमको मिल गया। अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट पोल जीरो प्लॉट ऑफ एच ऑफ जेड। एच ऑफ जेड का कौन सा प्लॉट होगा, इन जेड प्लेन में कौन सा प्लॉट होगा वो आपको बताना है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर दिया हुआ है नोट में, क्या दिया है, क्या नोट में क्या है, द कंसंट्रिक सर्कल, जो अभी बनाएंगे ऑप्शन, है ना, द कंसंट्रिक सर्कल्स आर mod z इक्वल टू 1 एंड mod z इक्वल टू 1/e, ये दिया हुआ है गिवन, ठीक है। ऑप्शन क्या, ऑप्शन देख लीजिए, है ना। ए नंबर ऑप्शन हो गया आपको रेडियस हो गया, और यहाँ पर 2 सर्कल बना हुआ है इस तरह से, है ना। और इसमें क्या है, इसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। रिप्रेजेंटेशन किस तरह से वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। और बी नंबर में क्या दिया है सर्किट, और ये क्या नाम है डायग्राम, ऑप्शन छोटा छोटा डायग्राम बना रहा है ताकि स्पेस कम है ना, इसलिए 2 हो गया, है ना। ए बी, और एक और डायग्राम देते हैं ना छोटा सा, इस तरह से, एक इससे भी छोटा कर देता है ना, लेकिन ये है कि सेम डायग्राम है तीनों, ठीक है। इस तरह से मत बोलिएगा कि कोई सर्कल एक छोटा है एक बड़ा, इस तरह से कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसमें मैपिंग कैसे किया गया है दिखाते हैं हम। ये मान लीजिए फर्स्ट डायग्राम में है, तो इसमें क्या है, पोल जो है आपको बता रहा है कि सेंटर में एक पोल यहाँ पर है और एक पोल यहाँ है, 3 पोल ये हो गया। और जीरो जो बता रहा है, ये 1 0 इधर, 1 0 इधर, और 1 0 जो है ये सेंटर में है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से पोल जीरो रिप्रेजेंटेशन बता रहा है। और ये जो है इसका एंगल भी बता दिया गया, कितना है ये, π/4 45 डिग्री, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, ये -π/4, इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये तो पता ही है ना, 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री एंड सो ऑन। अब इसमें क्या दिया है डायग्राम में, इसमें तुमको दिया है, ये हो गया आपको जीरोस, 1 0 इधर, है ना, और एक पोल तो इधर है, और एक पोल इस साइड हो गया, है ना, और 1 0 इधर, और एक पोल इधर। डायग्राम का ये भी कितना है, π/4 मीन्स 45 डिग्री, और ये भी जो पोल है वो भी π/4 ही बना, लेकिन -2 हो गया। थर्ड डायग्राम में क्या है, कि 2 पोल है इस तरह से, और 1 0 इस साइड है ना, एक पोल इधर है, और 1 0 जो है आपको इधर में 45 डिग्री पे, 1 0 इधर में, जिसका एंगल कितना है 45 डिग्री, π/4, और यहाँ -π/4, और यहाँ पर π/4, कहाँ से, सेंटर से एंगल है, ठीक है। इस तरह से डायग्राम दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देख लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन क्या है, इसमें क्या बोला गया है, देखिए आप यहाँ पर एक पोल देख रहे हैं सेंटर में, है ना, एक पोल क्या है, ये है ना यहाँ पर सेंटर में। तो जब पोल अगर सेंटर में हो या फिर इमेजिनरी एक्सिस पे पोल हो, तो उसको कहाँ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मस्ट लाई ऑन द जेड प्लेन, है ना। ये z इक्वल टू 1 पे जो हम लोग डिस्कस किए थे, केस थर्ड। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, वन पोल इज एट ओरिजिन एस प्लेन पे, एस प्लेन यहाँ पर लिख देते हैं एस प्लेन, ठीक है, एस प्लेन। देयरफॉर इट इम्प्लाइज वन पोल मस्ट बी ऑन mod z इक्वल टू 1, करेक्ट, कोई दिक्कत, इस सर्कल पे होना चाहिए। देयरफॉर ऑप्शन, देखिए एक पोल, देखिए इसमें यहाँ पर तो पोल है ही नहीं, NCR करेक्ट,
हाँ, तो अब 1 यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो छोटा वाला है mod z इक्वल टू 1 और बड़ा वाला 1/e। 1/e क्या होगा, छोटा वाला, और जो बाहर में है वो उसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक पोल कहाँ है जो इस पे लाई कर रहा है, इस पे तो नहीं लाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा है। और यहाँ पर क्या है, ये लाई कर रहा है और ये भी लाई कर रहा है, तो मीन्स बी एंड सी। सो वी नीड टू सी चेक बी और सी में हम लोग को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एक पोल जो है ये यूनिट सर्कल पे यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है, इसमें लाई नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो बी एंड सी हो गया ऑप्शन। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, अब देखिए ये तो पोल हो गया यूनिट सर्कल पे, है ना। अब देखिए अब हम लोग को देखना है कि और कौन सा पोल है आपका, दो कॉम्प्लेक्स पोल है जो कि लेफ्ट साइड पर में, जो भी लेफ्ट साइड में है उसका कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड में जो भी है, जो भी लेफ्ट साइड में उसको हम लोग करते हैं इनसाइड द यूनिट सर्कल। इनसाइड द यूनिट सर्कल होना चाहिए, है ना। दो पोल कहाँ होना चाहिए, इनसाइड द यूनिट सर्कल, और एंगल कितना होना चाहिए, अल्फा इंटू टी। समझ में आया? तो देयरफॉर जो टू पोल्स होंगे, टू पोल्स जो कि कॉम्प्लेक्स है लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में, उसको हम लोग जेड में कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इनसाइड यूनिट सर्कल। इनसाइड यूनिट सर्कल में होना चाहिए विथ एंगल ऑफ जेड विल बी कितना था, अल्फा टी प्लस माइनस अल्फा टी, प्लस माइनस अल्फा टी, करेक्ट, प्लस माइनस अल्फा टी, है ना। तो रूट्स हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि एस है। एस इक्वल टू क्या है हमारा, देखना पड़ेगा क्या है। यहाँ पर देखिए एस इक्वल टू क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स रूट है, देखिए यहाँ से यहाँ गया तो -2 हो गया रियल, उसके प्लस माइनस दो गो रूट्स है, कितना पर है, -j पाई पे, तो ये हमारा रूट्स हो गए। एस इक्वल टू -2 प्लस माइनस j पाई, ये एस का वैल्यू हो गया, है ना। देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू -2 एंड अल्फा इक्वल टू कितना है, j पाई मीन्स पाई, एंगल है ना, तो ये पाई एंगल हो गया। पाई मीन्स 180 डिग्री, है ना। पाई मीन्स हो गया आपको 180 डिग्री। अल्फा टी, अल्फा के यहाँ रॉन्ग वैल्यू है ना, अल्फा कितना होगा, इसका एंगल बताइए। एंगल जेड इक्वल टू क्या होगा, e⁻s t, है ना, s इंटू टी होता है, तो s का वैल्यू यही पुट करना है, तो e⁻⁻2t, ओके, इंटू e⁻ प्लस माइनस j पाई इंटू टी, करेक्ट, यही है। हाँ, और t इक्वल टू कितना वैल्यू है, t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, सिग्मा तो ठीक है ना, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, j पाई टी, तो मीन्स पाई टी प्लस माइनस पाई टी, तो प्लस माइनस पाई इंटू टी, वेयर टी इक्वल टू क्या है, 1/f होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का कितना दिया, 2 हर्ज है ना फ्रीक्वेंसी, 2 हर्ज, तो 1/t हो जाएगा, तो 1/2, है ना। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस पाई/2, दैट इज 90 डिग्री पे होगा। तो प्लस माइनस 90 डिग्री पे देखिए दो पोल्स होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 90 डिग्री पोल्स है नहीं, 45 पे है, 45 पे है, ये 45, ये 45, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, करेक्ट। सो दिस इज योर बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मैपिंग ऑफ अ जेड ट्रांसफॉर्म। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से, मैपिंग ऑफ अ जेड ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। तो मान लीजिए आपको h(s) दिया हुआ है, लैप्लास ट्रांसफर फंक्शन बोल सकते हैं, 10/s इंटू एस प्लस 5 दिया हुआ है, s इंटू एस प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो दी जेड ट्रांसफॉर्म corresponding to दी लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि h(s) है, क्या होगा, इज व्हाट, क्या होगा बताइए। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, इजी मेथड से।
है ना। तो हम लोग को पता है कि अगर करना है तो z इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, e टू द पावर एस टी, वेयर t क्या है, सैम्पलिंग पीरियड है ना। अब देखिए जो एच ऑफ एस है उसका देखिए पोल्स क्या है और जीरोस क्या है ना। तो जीरोस तो इसमें है नहीं, जीरोस है क्या इसमें, जीरोस तो है नहीं, छोड़ दीजिए। पोल क्या होगा, पोल्स क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है डी ऑफ एस इक्वल टू जीरो करते हैं। डी ऑफ एस क्या है, डी ऑफ एस ये मीन्स एस इंटू एस प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो देयर फॉर एस इक्वल टू जीरो कॉमा माइनस 5, ये एस का वैल्यू है, जीरो कॉमा माइनस 5। और दोनों क्या है, रियल वर्ड्स, रियल्स है ना। तो एस इक्वल टू जो जीरो है इसको कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, यूनिट सर्कल पे, हम लोग को पता है यूनिट सर्कल पे जाएगा। और एस इक्वल टू माइनस 5 जो है, जो लेफ्ट साइड में है, ये क्या है, लेफ्ट साइड में हो गया एस प्लेन में, तो इसको कहाँ करना है, इनसाइड सर्कल, इनसाइड सर्कल होगा ये, इनसाइड क्या होगा, सर्कल, इनसाइड सर्कल, समझ में आया, इनसाइड सर्कल। अगर किसी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, है ना। समझ में आया। आप देखिए पोल्स का वैल्यू क्या होगा, पोल्स इन जेड डोमेन, जेड डोमेन में पोल्स क्या होगा, दो पोल्स होंगे, एक क्या होगा z1 इक्वल टू ई टू दी पावर s1t कॉमा एंड z2 क्या होगा ई टू दी पावर s2 ऑफ t। तो z1 क्या हो जाएगा, s1 क्या है, s1 हो गया आपको 0, s2 हो गया -5, तो 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना, कॉमा z2 का वैल्यू क्या होगा ई टू दी पावर -5t, ई टू दी पावर -5t। ये दोनों पोल हो गए, है ना, जेड प्लेन का पोल हो गए, ठीक है। अगर ये जेड प्लेन के पोल है, जेड प्लेन क्या है, ये दोनों पोल्स हैं, ये दोनों क्या हो गए, जेड प्लेन के पोल्स। तो जेड प्लेन में दो पोल हो गए, एक कहाँ है 1 पे और एक क्या है, ई टू दी पावर -5t पे, ई टू दी पावर -5t पे पोल्स हो गए, है ना। और जेड प्लेन का जीरोस क्या होंगे, जीरोस जेड प्लेन के जीरोस क्या होंगे, है ना, पोल्स तो पता चल गया, है ना, जीरोस भी तो होंगे ना दो, यस करेक्ट। तो जीरोस कहाँ पे होंगे, है ना। तो हम लोग पोल को तो ये कर लिया ना पता, दो हो गए सिग्नल, एक इनसाइड सर्कल होना चाहिए, एक यूनिट सर्कल पे होना चाहिए। ओके, इनसाइड सर्कल जो होंगे वो क्या होगा, ऑब्वियस है कि यू एन के टर्म में होंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एच ऑफ एस को एस के बारे में लिखते हैं। एच ऑफ एस को क्या लिख सकते हैं हम लोग फिर से, 10/s इंटू एस प्लस 5 है ना, s इंटू एस प्लस 5 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/s पार्शियल फ्रैक्शन 2/s प्लस 5, है ना। और इसको इन्वर्स करेंगे तो ये एच ऑफ टी हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एच ऑफ टी क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट u ऑफ टी माइनस ई टू दी पावर -5t इंटू यू ऑफ टी। तो ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ये मीन्स इम्पल्स रेस्पॉन्स एच ऑफ टी। और इसका जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है दैट इज एच ऑफ टी, दैट विल बी योर सेम एज योर एच ऑफ एन। तो एच ऑफ एन भी क्या हो जाएगा हमारा, तो एच ऑफ एन क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 है बाहर में, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए पोल क्या थे, एस इक्वल टू 0 पर था, अब हमारा पोल क्या हो गया, जेड इक्वल टू 1। तो जेड इक्वल टू 1 कब होगा, z/z -1 होगा, है ना, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पोल देखिए एस इक्वल टू -5 पे, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 तो पहले ब्रैकेट में है बाहर में, तो z/z - a कर सकते हैं, z/z जो पोल है, पोल क्या हमारा ये वाला, तो ये यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर -5 e to the power -5t। so this will be your answer। ओके, नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह से आ जाएगा, 2z इंटू ब्रैकेट 1 माइनस ई टू दी पावर -5 इंटू टी डिवाइडेड बाय z -1 इंटू z - e टू दी पावर
minus 5 into t. So this is your answer for the h of z. ये h of z का है ना, ये क्या है h of z का, ये क्या है h of z का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैपिंग पार्ट का लिए मैपिंग पार्ट का यही आंसर, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को, दैट इज वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, है ना, कुछ इस तरह से सिग्नल है, ये एक बॉक्स होंगे, है ना, उसके बाद ये यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो फिर एक इनपुट है किसी चीज़ का, एक सिस्टम का, है ना, और यहाँ से जो आउटपुट है वो हो गया आपको y ऑफ n, और इस y ऑफ n का वैल्यू क्या होगा निकालना है। तो ये जब जाता है इधर में, है ना, तो ये हो गया आपको LTI सिस्टम है, ये क्या है LTI सिस्टम जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन h ऑफ z है, मीन्स डिस्क्रीट में हो गया, और यहाँ पर हो गया x ऑफ n, ये क्या है आपका सैम्पलर, ये क्या है सैम्पलर जो कि सैंपल करते हैं, है ना, और इनपुट क्या हमारा x ऑफ t जो कि कंटिन्यूअस हुआ, सैम्पलर से गया तो वो डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो गया। सैम्पलर का जो फ्रीक्वेंसी है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ ऑफ एस, दैट इज 400 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एक्स ऑफ टी भी आपको दिया हुआ है, कितना है एक्स ऑफ टी 2 + 5 इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी, क्या है 2 + 5 इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी, ये आपका इनपुट हो गया, इनपुट हो गया, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या दिया है कंडीशंस, अंडर स्टडी स्टेट में क्या है h ऑफ z का जो वैल्यू है, अंडर स्टडी स्टेट मीन्स जब हमारा स्टडी स्टेट लेप्लस में करते तो लेप्लस में या फिर टाइम डोमेन में स्टडी स्टेट का मतलब क्या होगा, टाइम t टेंस टू इन्फिनाइट, है ना। तो h ऑफ z का वैल्यू क्या दिया है इस टाइम में 1/n ब्रैकेट 1 - z टू दी पावर -n डिवाइडेड बाय 1 - z पावर -1, है ना। वेयर जहाँ पर क्या है, वेयर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ सैम्पल्स पर cycles, okay, then the output y of n of systems under steady state is क्या होगा ये निकालना है, u of n का वैल्यू अंडर स्टडी स्टेट, u of n एट स्टडी स्टेट। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, इजी है, थोड़ा देखते हैं टेक्निक। तो सिंपली है, जो हमारा x ऑफ t इनपुट है उसको हम लोग सैम्पलिंग किए f ऑफ s से, तो हमारा क्या आ गया x ऑफ n आ गया। तो x ऑफ n क्या होगा, जो हमारा x ऑफ t था 2 + 5 इंटू साइन ऑफ 100 पाई, तो है ही t को हम लोग क्या कर देंगे, जो t है स्मॉल t जो टाइम है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें, और t जो है वो कन्वर्ट हो जाता है n टाइम्स ऑफ सैम्पल्स में, t जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है n टाइम्स ऑफ सैम्पलिंग टाइम पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा पाई ऑफ n इंटू टी ऑफ s, ये सैम्पलिंग हो जाएगा, सैम्पलर का आउटपुट होगा x ऑफ n का, सिंपल समझ में आया। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, x ऑफ n इक्वल टू 2 + 5 इंटू साइन ऑफ 100 n पाई ts, ओके, वेयर t ऑफ s क्या है सैम्पलिंग पीरियड, दैट इज 1/f ऑफ s, दैट इज 1/400 सेकेंड, यही है ना। और इसको फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 5 इंटू सिग्नल है, ये आपको पता ही मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करना है इसको, n/4 एफ टी ऑफ एस का वैल्यू जब पुट कर दोगे, है ना। तो इस सिग्नल से हम लोग को ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा n होता है तो π/4 होगा, सिंपल, साइन ओमेगा नॉट n होता है तो ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या हो गया 5/4, ठीक है। देयरफॉर
एच ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, एच ऑफ ओमेगा, एच ऑफ जेड दिया हुआ ना, तो एच ऑफ ओमेगा क्या होगा, जेड इक्वल टू क्या हम लोग रिप्लेस करेंगे, जेड इक्वल टू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्लेस करेंगे ई टू दी पावर जी ओमेगा, जेड इक्वल टू ई टू दी पावर एस टी, जेड इक्वल टू ई टू दी पावर ओमेगा से हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ई टू दी पावर जे, ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू ई टू दी पावर जे ओमेगा, है ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख रहे हैं। जो हमारा एच ऑफ जेड है, एच ऑफ जेड को हम लोग एच ऑफ ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे बाय पुटिंग जेड इक्वल टू ई टू दी पावर जे ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा n डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, करेक्ट। नाउ एच ऑफ ओमेगा नॉट क्या होगा, अगर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट पुट कर देंगे, ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या है, π/4, देयरफॉर दिस विल बी 1/n ब्रैकेट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 100 पाई इंटू जे, ओमेगा इंटू एन, ओमेगा का वैल्यू क्या है, π/4, है ना, ओमेगा का वैल्यू हो गया π/4 इंटू एन का वैल्यू हो गया ओमेगा का वैल्यू, एन का वैल्यू हो गया 400, एन का वैल्यू कितना है 400 हो गया, है ना, जो कि सैंपल्स पर सेकेंड है, दैट इज एन, एन हो गया सैंपल्स ही है ना, एन एक सेकेंड में कितना सैंपल्स, तो 400 हो गया एन, है ना। ओमेगा के वैल्यू पता ही है π/4, तो 4 कट गया तो 100 पाई जे होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे π/4 हो गया, करेक्ट। नाउ अब देखिए मॉड ऑफ एच ऑफ ओमेगा नॉट, मॉड यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए जो ई टू दी पावर माइनस जे हो गया 100 एंड पाई, क्योंकि ये पाई का प्रोडक्ट है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियस प्रोडक्ट है तो क्या होगा, ये 1 होता है, ये कितना होता है 1, कॉस 2 पाई है ना, 100 पाई मीन्स क्या होगा 2 पाई का प्रोडक्ट है, इसलिए कॉस पाई हो गया 1 और साइन के लिए 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1, और ई टू दी पावर माइनस जे π/4 है, तो ये क्या हो जाएगा, जिसका कुछ वैल्यू होगा तो उससे मतलब नहीं है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1/n ब्रैकेट 1 माइनस 1/1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे π/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सो एच ऑफ ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया 0, देयरफॉर वाई ऑफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ऑफ एन क्या हो जाएगा, वाई ऑफ एन क्या हो जाएगा, आउटपुट है ना, तो रेस्पॉन्स दो तरह का रेस्पॉन्स होगा, रेस्पॉन्स ड्यू टू डीसी क्योंकि इनपुट जो है एक्स ऑफ टी या फिर एक्स ऑफ एन जो है उसमें दोनों कंपोनेंट है, डीसी भी है एसी भी है, डीसी क्या है 2 और एसी साइनोसॉइडल फॉर्म में, तो एंड रेस्पॉन्स ड्यू टू एसी क्या है हमारा 5 साइन 100 पाई टी, इस रेस्पॉन्स का क्या वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में एसी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है हमारा ये 0 हो जाता है, एच ऑफ ओमेगा नॉट, समझ में आया। तो बचा क्या, रेस्पॉन्स ड्यू टू ओनली डीसी, तो रेस्पॉन्स ड्यू टू डीसी क्या हो जाएगा, डीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओनली जो है हमारा वाई ऑफ एन, जो इनपुट है वही आउटपुट हो जाएगा, सो वाई ऑफ एन इक्वल टू 2 ओनली हो जाएगा, एट स्टडी स्टेट सिंपल, है ना। सो दिस इज इजी क्वेश्चन, है ना। अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम परमिट्स करेगा तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट योर पोल मैपिंग। नाउ द सेकेंड टॉपिक दैट इज़ द डीएफटी क्या है ये, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डीटीएफटी।
DTFT डिस्क्रीट टाइम जो है इससे अलग है, वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रीट टाइम ये क्या है, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट टाइम अलग चीज़ हो गया, ठीक है। तो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म DFT जो बोलते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। कुछ मीन्स आपको यदि आए तो व्हाट इज DFT तो आपको पता होना चाहिए सिंपली। इट इज़ अ पावरफुल computation tools computation tool which allows us to evaluate the Fourier transform x of e to the power j ओमेगा। यही होता है ना फूरियर ट्रांसफॉर्म इन डिस्क्रीट, DTFT जो होता है ऑन आ डिजिटल कंप्यूटर पे हम लोग इसके हेल्प से फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्यूटर और स्पेशली डिजाइंड हार्डवेयर पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, अनलाइक DTFT से कैसे अलग है, विच इज़ डिफाइंड फॉर द फाइनाइट एंड द इन्फिनाइट सीक्वेंस। जो DTFT है वो किसके लिए डिफाइंड है, इट इज़ डिफाइंड फॉर द फाइनाइट एंड एज वेल एज इन्फिनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस के लिए ये डिफाइंड होता है। लेकिन DFT जो है, DFT डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड ओनली फॉर सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस के लिए ही सिर्फ डिफाइंड है DFT, है ना। और क्या है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिंस x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, ये क्या हमारा कंटिन्यूअस होता है एंड पीरियोडिक होता है, ठीक है। लेकिन DFT इज ऑब्टेन्ड, DFT को ऑब्टेंड कैसे करते हैं, इज ऑब्टेन्ड बाय सैम्पलिंग करते हैं। किसको करते हैं, सैम्पलिंग वन पीरियड ऑफ द डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ frequency period at the finite length of frequency points। समझ में आया, ये सिंपल है। ये क्या है, कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक होता है, लेकिन DFT जो है वो सैम्पलिंग वन पीरियड ऑफ द DTFT को सैम्पलिंग करते हैं, बस फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉइंट का फाइनाइट नंबर को ही करते हैं। उसके बाद क्या, DFT का क्या है रोल, plays an important role in the implementation of many signal processing algorithms। समझ में आया, DFT बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ सिग्नल, DFT इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग लीनियर फिल्टरिंग ऑपरेशन। अपार्ट फ्रॉम determining the frequency content of a signal, DFT
used to perform linear filtering हो गया, और क्या है, लीनियर फिल्टरिंग ऑपरेशन में भी यूज्ड होता है इन दी फ्रीक्वेंसी डोमेन, विच डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन, है ना। यही सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है किसके, डीएफटी के, है ना। अब डीएफटी है, वैसे ही डिस्क्रीट फूरियर सीरीज भी होता है, फूरियर सीरीज, जैसे हम लोग डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज पढ़े थे, वैसे ही डिस्क्रीट फूरियर सीरीज भी होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डीएफएस, इसको डिफाइन क्या कैसे करते हैं, एक्स ऑफ पी ऑफ के, सिंपली एक फॉर्मूला है, जैसे फूरियर सीरीज करते हैं, समेशन n इक्वल टू 0 टू कैपिटल N-1 एक्स ऑफ पी ऑफ n e टू द पावर माइनस j 2 पाई बाई n इंटू के एन। ये हो गया इक्वेशन 1, वेयर एक्स पी ऑफ n, जब इन्वर्स करेंगे तब फिर क्या होगा, ये इन्वर्स बोलो या फिर जो सिग्नल है x 1/n हो जाएगा, समेशन k इक्वल टू 0 टू N-1 एक्स ऑफ पी। ये सब आप डीएसपी में जो है ना डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है, किसमें, डीएसपी में, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, e टू द पावर j 2 पाई बाई n इंटू के। वे इक्वेशन नंबर 2, वेयर n इक्वल टू क्या है, 0 1 2 डॉट कहाँ तक जाएगा, N-1 सिग्नल तक, ठीक है। इस तरह से ये डिस्क्रीट फूरियर सीरीज को हम लोग लिखते हैं। वेयर एक्स पी ऑफ n इज ए पीरियोडिक, जो सिग्नल है वो क्या, पीरियोडिक विथ पीरियड, ये क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है विथ पीरियड ऑफ n सैंपल्स, समझ में आया। सो दिस इज योर डिस्क्रीट फूरियर सीरीज, है ना। उसी तरह से हम लोग का है डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएफटी। तो इसमें क्या है, इफ वी यूज आ डिजिटल कंप्यूटर का अगर हम लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर टू कंप्यूट n equally spaced points over the interval 0 से greater omega but less than 2 pi, then the n points should be located at omega k equal to 2 pi by n into k, वेयर k का वैल्यू क्या होगा, 0 1 डॉट कहाँ तक, कैपिटल N-1 तक जाएगा, ठीक है। नाउ दीज n इक्वली स्पेस्ड फ्रीक्वेंसी सैंपल्स, जो इक्वली स्पेस सैंपल्स हैं n ऑफ द DTFT, क्या है, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म आर नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएफटी बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोटेड बाय करते हैं, डीएफटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स ऑफ के एंड इट इज गिवन बाय, इसको क्या लिखते हैं, एक्स ऑफ के इक्वल टू एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा, जो कि DTFT है, एट प्रोवाइडेड ओमेगा इक्वल टू क्या कर देते हैं, सिंपल जो करते हैं 2 पाई बाई n इंटू के, वेयर 0 से ग्रेटर है के बट लेस देन और इक्वल टू N-1। समझ में आया, तो ये इक्वेशन 1 हुआ। सेकेंड इक्वेशन क्या है, वेयर एक्स ऑफ के को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स ऑफ के क्या है,
n इक्वल टू 0 टू n-1 भी लिखते हैं, है ना, x ऑफ n होगा इंटू ई टू द पावर माइनस जे 2π/n इंटू के n, वेयर k इक्वल टू 0 1 n-1. सो दिस इज योर अबाउट DFT में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, दैट इज x ऑफ k एक तरह से DFT है, मीन्स DTFT को हम लोग क्या किया, हम तो हम लोग क्या कर रहे हैं, n इक्वली स्पेस्ड फ्रीक्वेंसी सैंपल ऑफ DTFT का जो n इक्वली स्पेस सैंपल होगा, मीन्स DTFT क्या है, तो उससे क्या आ रहा है आपका कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक आ रहा है, उसको हम लोग इस तरह से सैम्पलिंग कर देंगे कि n इक्वली स्पेस्ड में हम लोग का सिग्नल मिल जाएगा, सैंपल्स मिल जाएगा, और उसको हम लोग DFT बोलेंगे. तो इसका मतलब क्या होगा, अगर सैंपल करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो फाइनाइट नंबर्स हो गए, तो क्या होगा, x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा है, तो ओमेगा को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 2π/n इंटू के से सिंपली. तो हमारा x ऑफ k क्या बन जाएगा, x ऑफ k क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर x ऑफ k विल बी सिंपली जो DTFT है उसमें ओमेगा का वैल्यू 2π/n इंटू के कर देंगे. यूजिंग कैसे हम लोग ये सैंपल इक्वली n इक्वली स्पेस पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय यूजिंग द डिजिटल कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं. सो दिस इज़ योर अबाउट DFT. अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है, कहीं भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपका डाउट जो है क्लियर हो सके, ठीक है. अगर और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है. नाउ एक हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे. मान लीजिए x ऑफ n है, इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x ऑफ z होगा. मान लीजिए आपको x ऑफ z जो है गिवन है, क्या है, z इन्वर्स इंटू 1 माइनस z पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 माइनस z इन्वर्स का होल. इसको मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड x ऑफ इन्फिनिटी, मीन्स x ऑफ n है तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पर इन्फिनिटी, वो हम लोग को निकालना है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, क्योंकि इन्फिनिटी है तो मतलब फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करना पड़ेगा. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए, x ऑफ इन्फिनिटी यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे. तो क्या है फाइनल वैल्यू थ्योरम, लिमिट z टेंस टू 1, है ना, 1 माइनस z इन्वर्स इंटू x ऑफ z, है ना, यही है फाइनल वैल्यू थ्योरम. अब इसमें पुट कर दीजिए सभी कुछ, है ना. तो यहाँ पर पुट करेंगे ये वाला, तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर लिमिट z टेंस टू 1, है ना. इसको पुट करने से क्या आ जाएगा, z इन्वर्स, है ना, और क्या होगा 1 माइनस z पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 माइनस z पावर माइनस 1, है ना. लेट मान लीजिए हम लोग एजम्पशन लेते हैं z इन्वर्स इक्वल टू x लेते हैं, है ना. तो देयरफॉर एंड अगर z टेंस टू 1 हुआ तो इसका मतलब x टेंस टू क्या होगा, ये भी 1 ही होगा. देयरफॉर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो क्या होगा, ये x यहाँ पर नहीं लेंगे हम लोग, क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना दोनों. मान लीजिए p ले लेते हैं, तो ये भी टेंस टू p हो जाएगा. तो x इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, लिमिट p टेंस टू 1 हो जाएगा, है ना. और ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, p/4 सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, p इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस p पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 माइनस p, है ना. इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर से, लिमिट p टेंस टू 1, है ना. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, p/4 1 प्लस p स्क्वायर इंटू 1 माइनस p इंटू 1 प्लस p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p. तो 1 माइनस p कैंसिल हो गया, है ना. तो x इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर p इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 4, 4 4 विल कैंसिल, 1 बाय 1. सो 1/4 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 1. सो x इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होगा, 1, यूजिंग द फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है.
बेसिक क्वेश्चंस है ना, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से, है ना। अगर आपको और भी कहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, है ना। और कुछ है क्वेश्चंस, मान लीजिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अगर टाइम है तो, टाइम है ही, ठीक है। एक क्वेश्चन है ज्यूरी टेस्ट से अगेन। मान लीजिए इस तरह का एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है ना। ये क्या है, समेशन का सिंबल है, ये क्या है, समेशन का सिंबल हो गया, है ना। और ये यहाँ पर बॉक्स हो गया जिसको हम लोग जी ऑफ जेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर इसको इससे फीडबैक दे रहे हैं, ये क्या हो गया, यहाँ से फीडबैक। आउटपुट को हम लोग जब इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक तरह से फीडबैक हुआ। फीडबैक जैसे हम लोग का क्लास में होता है, या फिर किसी को कोई भी प्रैक्टिस करता है तो उसको फीडबैक दिया जाता है कि आप कैसे क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना, तो उसको बोलते हैं फीडबैक्स। तो मान लीजिए इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है ना। दिस सिस्टम इज, दिया हुआ है क्या है, दिस सिस्टम इज स्टेबल, ये जो सिस्टम है ये क्या है आपका, स्टेबल है। फॉर व्हाट रेंज ऑफ के किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू जो है ये क्या है, स्टेबल है ना। अब यहाँ पर दिया हुआ है गिवन जी ऑफ एन इक्वल टू 0,1,1। अगर मान लीजिए यहाँ पर एरो नहीं है तो मतलब ये जो है आपका ओरिजिन पे है। जी ऑफ जेड यहाँ पर है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना एच ऑफ एन, तो उसका जी ऑफ एच ऑफ एन है तो एच ऑफ जेड होता है, वैसे ही जी ऑफ एन है तो यहाँ पर जी ऑफ जेड है, मीन्स इसका जेड ट्रांसफॉर्म जी ऑफ जेड है, समझ में आया। तो ये दिया हुआ है तो आपको वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टेबल किस वैल्यू के लिए, के का किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम स्टेबल होगा, है ना। इसको बोलेंगे निगेटिव फीडबैक, क्योंकि जो आउटपुट है इनपुट के साथ जो है निगेटिव के साथ ऐड हो रहा है, निगेटिव पोलरिटी के साथ ऐड हो रहा है, इसलिए निगेटिव फीडबैक, समझ में आया। अब देखिए क्या है सॉल्यूशन, क्या है इसका देखते हैं, है ना। ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ये आउटपुट बाय इनपुट होता है, ये तो पता है ना। आउटपुट क्या हमारा, ट्रांसफ़र फंक्शन का जो है जी जेड बाय 1 माइनस के इंटू जी ऑफ जेड, ये हमारा फॉर्मूला होता है ट्रांसफ़र फंक्शन का जब इस तरह का लूप रहता है, ठीक है। ये कंट्रोल सिस्टम में पढ़िएगा, अभी के लिए देख लीजिए, है ना। वैसे भी आप यदि इक्वेशन लिख के कीजिएगा तो भी आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट मान लीजिए y और इनपुट मान लीजिए x, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये छोड़िए ये कर लीजिएगा आप, क्या हो जाएगा x माइनस के वाई इक्वल टू मीन्स इंटू कैपिटल जी इक्वल टू अगेन y, है ना। ये कैपिटल x होगा, कैपिटल y होगा, तो यहाँ से y का वैल्यू y x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो g हो जाएगा, समझ में आया। तो जी जेड बाय 1 माइनस के इंटू जी, तो इसको पुट करेंगे वैल्यू, है ना। तो एक्चुअली जी जेड का वैल्यू होगा क्या, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म। तो जीरो है तो जीरो, तो समेसन n इक्वल टू 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ जेड जेड पावर माइनस 1 प्लस जेड पावर माइनस 2, है ना। क्योंकि ये तो पाला है, सिंपल है, ये जेड ट्रांसफॉर्म निकालना, तो यहाँ पुट कर दीजिए, है ना। तो जेड माइनस 2 प्लस जेड पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के इंटू जेड पावर माइनस 1 प्लस जेड पावर माइनस 2, सिंपल हो गया, है ना। अब इसको फिर से सॉल्व कर देंगे, है ना। अगेन हम लोग इसको लिख सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल टू जेड प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर माइनस के इंटू जेड माइनस के। तो ये एक ट्रांसफर फंक्शन हो गया, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। जो नीचे वाला जो होता है इसी से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आपको इसको हम लोग लिखेंगे डी ऑफ जेड, जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, जेड स्क्वायर माइनस के जेड माइनस के, है ना, यही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ज्यूरी टेस्ट का अप्लाई करेंगे। कौन सा टेस्ट, ज्यूरीज टेस्ट। ये क्या है, इसका नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन पहले है डी ऑफ 1 मस्ट बी, डी ऑफ 1 आएगा क्या, 1 पुट कीजिए तो ये 1 माइनस 2 के आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है ना।
देयरफॉर के मस्ट बी लेस देन हाफ होगा फॉर स्टेबिलिटी। फॉर स्टेबिलिटी के लिए यही कंडीशन है। और सेकेंड पॉइंट क्या है, डी ऑफ -1 शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए ये कंडीशन है। तो अब -1 उसमें पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 + k - k शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो रहा है, 1 ग्रेटर देन 0। तो ये तो ठीक है। अब ये क्या आ गया, k इज लेस देन हाफ, एक कंडीशन आ गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या है आपका, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन फॉर प्रूविंग स्टेबिलिटी। तो ये क्या है, एक्चुअली नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज क्या होता है, 2n - 1 - 3, 2n - 3, n कितना है, हाईएस्ट पावर 2, तो 2 × 2 - 3 दैट इज 1। एक ही रो होगा, सिंपल एक ही रे होगा। सो देयरफॉर an का मॉड जो है वो क्या है, ग्रेटर देन a0 है कि नहीं, ये कंडीशन हम लोग को चेक करना पड़ेगा। an क्या है, z⁻2 जो है उसका कोफिशिएंट क्या, 1, तो 1 हो गया, 1 इज ग्रेटर देन। और a0 क्या है, -k, तो -k का मॉड। देयरफॉर यहाँ से क्या पता चल रहा है, मॉड k इज लेस देन 1। एक तो यहाँ से पता चल रहा है और एक यहाँ से कंडीशंस है ना। मॉड k इज लेस देन 1 का मतलब क्या होगा, -1 से ज़्यादा है k और लेस देन 1। समझ में आया, ये हो गया। देयरफॉर इक्वेशन 1 ये इससे, और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक क्या बोल रहा है, k का वैल्यू 2 से, एक बोल रहा है तुम्हारा k इज लेस देन हाफ, k इज लेस देन हाफ, k का वैल्यू लेस देन हाफ से कम है ना। और k का वैल्यू एक क्या बोल रहा है, -1 से ज़्यादा और +1 से कम, इस तरह से। तो क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ से यहाँ तक है। तो देयरफॉर हमारा k का वैल्यू क्या हो जाएगा फॉर स्टेबिलिटी, k वैल्यू फॉर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, -1 से ज़्यादा होना चाहिए k का वैल्यू, बट लेस देन हाफ होना चाहिए। सो दिस इज़ योर कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी। समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह से हमारा सिग्नल एंड सिस्टम का कोर्स जो है कंप्लीट होता है, मीन्स अप टू लेक्चर 15। थोड़ा लेंदी हो गया है लेक्चर, तो कोई नहीं, आप थोड़ा शांति से देखेंगे, स्लोली करके देख सकते हैं, फास्ट करके भी देख सकते हैं, उसमें बहुत सारा ऑप्शन है ना। उसके बाद अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हमको लगता है जितना इस सीरीज में डिस्कस किए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है ना। आपको क्या करना है, बस ये आपका बेसिक हो गया, इतना तो आपको करना ही है, नोट्स बनाना है, इतना करना है। और उसके बाद जो है आपको बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, गेट का हो, ईएस का हो, या फिर यूनिवर्सिटी का है ना। तो वो सब एग्ज़ाम का आपको बार बार आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।